हम लोगों ने जो है हमारा टीचिंग ऑफ लाइफ साइंस ये जो सब्जेक्ट है पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला का जो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो है हमने इसका चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। हमने लाइफ साइंस का मीनिंग, उसका कंसेप्ट, इम्पोर्टेंट ऑफ द साइंस एंड लाइफ साइंस इन द स्कूल करिकुलम, वो हमने सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं चैप्टर 1 में। सो आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग स्टडी करेंगे जनरल एम्स एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टीचिंग ऑफ द लाइफ साइंस। So introduction, aims of teaching लाइफ साइंस एंड एम्स ऑफ लाइफ साइंस टीचिंग। स्कूल में जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हैं उनमें हमें डिफरेंट डिफरेंट जो है क्या है इसके एम लाइफ साइंस के वो पढ़ेंगे। जनरल ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे इसके, और जो एम्स और ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस क्या होता है ये देखेंगे। एंड यस, सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। While starting to work on animation, it is essential to think beforehand about the motives and the purpose of the undertaking that mission. हमें अगर कोई भी मिशन है जो हमारा, उसको करने से पहले हमें उसके जो हमारे मोटिव्स हैं और हमारे पर्पस जो है उनके बारे में हमें देखना चाहिए। Then the advantages that can be drawn or purposes that can be served by the study of that subject become the aims for its study. So हमने अभी बोला है कि हम लोग जो क्या स्टडी करेंगे कि टीचिंग ऑफ लाइफ साइंस। ये जो लाइफ साइंस है हमारे स्कूल स्टूडेंट्स को 10th तक पढ़ाने का, इसकी जो है एम्स क्या है, राइट। सो इसको पढ़ाने के बाद हमें क्या एडवांटेजेस होंगे, क्या हम एडवांटेजेस हमें मिलेंगे और इसके क्या पर्पस होंगे पढ़ाने के लाइफ साइंस को, तो हम वो पढ़ेंगे इसमें। एम्स ऑफ टीचिंग ऑफ लाइफ साइंस। It is in the same tune and spirit that we are apt to think about the aims of teaching life science in our schools. These aims are likely to be based on the various advantages from or purpose served by the study of the life science. Keeping this in view, we may strive the following aims for the teaching of life science in our schools. So ये जो है हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एम्स ऑफ टीचिंग लाइफ साइंस। कि टीचिंग लाइफ साइंस को स्कूल में टीच करने के क्या एम्स है। तो फर्स्ट है नॉलेज एम। Teaching of life science should aim for the necessary increase in the span on the one's knowledge regarding the life science, helping him to understand himself and his environment. तो सबसे पहले तो नॉलेज यही है कि हमें टीच एम यही है कि हमें इससे बहुत सारी नॉलेज मिलेगी लाइफ साइंस में, ठीक है। Starting in the lower classes may be made with the awareness of the simple facts and the principle used and observed in day-to-day life, and the sphere of this awareness may then be progressively increased in the higher classes. So first point simple है कि हमें इससे नॉलेज मिलेगी। जो लोअर क्लासेस में हमें जो सिंपल हमें अवेयर होंगे बहुत सारे फैक्ट्स के बारे में, और जो यही जो हमारे फैक्ट्स और प्रिंसिपल्स हैं इन्हीं से हम यही जो हमारी नॉलेज है इंक्रीज करेगी इन द हाई क्लासेस। प्रैक्टिकल एम है, the knowledge is useful only when it is capable of being applied practically. It is in this sense obligatory on the part of a science teacher to teach practical aspect of all the scientific principles and knowledge imparted to his students. So life science पढ़ाने का एक और एम है कि इससे जो है वो जो भी उन्होंने चीजें थियोरेटिकली पढ़ रखी हैं वो उसको प्रैक्टिकली भी परफॉर्म कर कर देख सकेंगे। The student should not only know about the scientific principles and the facts, but should also be able to use them practically in understanding their self and environment surrounding them. They must be able to harness the forces of nature and secrets of scientific world for the welfare of the society in a more useful way by learning the use of scientific principles and the facts as practically as possible. Development of the scientific attitude.
Science education should aim for the development of the scientific attitude among the learners. It should help in removing the superstitions, false beliefs, wrong notations spread in the society, and the cultivate the habits of proper reasoning, observation, and the experiment. हमारे समाज में जो बहुत सारी सुपरस्टिशंस जो है, फॉल्स बिलीफ्स हैं। सुपरस्टिशन का मतलब जो मन घड़त बातें हैं, फॉल्स बिलीफ्स हैं, उनको जो सोसाइटी में से रिमूव करने में हेल्प करती हैं और उनको एक प्रॉपर उनके माइंड सेट डेवलप करती है, सो दैट कि वो हर बात को अच्छे से सोचे, ऑब्जर्व करें और फिर एक्सपेरिमेंट कर कर उस पर यकीन करें, leading to a firm belief in the testing and the verification of hearsay and observed facts। जो उन्होंने कानों से सुनी है और बिल्कुल ऑब्जर्व करिए, सिर्फ उन्हीं बातों पर उनको जो है भरोसा करना है। The science education thus should aim in providing proper opportunity for the development of the scientific temperament and the attitude। सो जो साइंस की एजुकेशन है, इससे उनके अंदर जो है एक साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होगा स्टूडेंट्स के अंदर। इट शुड क्रिएट अमंग दैम अ स्पिरिट ऑफ क्यूरियोसिटी डेवलप होगी नॉलेज के लिए, न्यू थिंग्स के लिए, एंड डिस्कवरिंग देयर एनवायरनमेंट एंड पेनिट्रेटिंग डीपली इनटू द नेचर of these things and events surrounding them, and doing all this quite systematically by adopting a scientific method of thinking and solving the problems। so इस पॉइंट का सिंपली मतलब है कि उनके अंदर जो है फॉल्स बिलीफ को रिमूव करने की, प्रॉपर रीजनिंग ऑब्जर्व करने की, एक्सपेरिमेंट करके विश्वास करने की उनके अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड आएगा। उनके अंदर जो है क्यूरियोसिटी डेवलप हो जाएगी, नई नई थिंग्स के बारे में जानने की, अपनी जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें कौन सी चीज़ कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है। सो ये क्यूरियोसिटी वाई जो होता है ना, वाई डेवलप करती है जो है साइंस। Cultural aim, the development of the culture and the civilization of the country is essentially linked with the progress and the improvement of the study of the science। किसी भी कंट्री का जो कितना डेवलप कल्चर में डेवलपमेंट हुई है, सिविलाइजेशन में कितनी डेवलपमेंट हुई है, वो लिंक होती है विद द डेवलपमेंट एंड द इम्प्रूवमेंट ऑफ द साइंस। This fact becomes a quite imperative if we see that the countries who are said to be quite developed today are those countries who are considered to be more advanced in the matter of science education imparted to the youngers। जिस कंट्री को हम बोल रहे हैं कि वो डेवलप है, तो वहाँ पर साइंस जो है बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है। The history of the development of the science also reveal the same fact। The countries quite ahead in the study of science are known to have a quite developed civilization and rich culture aspects। जो कंट्री जो है क्वाइट अहेड इन द स्टडी ऑफ साइंस, जो ज़्यादा डेवलप हो गई हैं, जिन्होंने साइंस में ज़्यादा अच्छी अच्छी डेवलपमेंट कर ली हैं, वो ज़्यादा डेवलप है, वहाँ पर उनकी सिविलाइजेशन कल्चर ज़्यादा डेवलप है। In fact, our civilization owes much to the development of the science and technology, and therefore, if we want to go ahead in the matter of the development of the civilization and the culture, we have to strive for bringing progressive improvement in the study of the science। अगर हमें भी डेवलप होना है तो हमें साइंस को डेवलप करना पड़ेगा। In case our citizens remain aloof and ignorant about the development of science and technology, it will naturally lead us to lag behind। The key for utilizing what science has given us lies in the way and the manner is being taught in our schools। Therefore, science should be taught in the schools in such a way as to grasp the progress in the field of science, apply it for the enhancement of our culture and heritage and the development of our civilization, appreciate the contribution of the study of science in the progress and the development of the culture and the civilization। जो हमारे स्कूल्स में जो है हमने साइंस को पढ़ाना चाहिए, हमें उसको इस तरह से पढ़ाना चाहिए, इन सच अ वे कि सबसे पहले तो टू ग्रैब द प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ साइंस। जो भी प्रोग्रेस हो रही है साइंस की, वो उसको ग्रैस्प कर पाए, उसको अप्लाई कर पाए। सबसे पहले तो वो नॉलेज को गेन कर पाए, देन वो नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाए, जिससे वो उनकी हमारी जो
कल्चर है, हमारी सिविलाइजेशन को डेवलप करने में हेल्प कर पाए, और फिर उनको एप्रिशिएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्टडी ऑफ द साइंस इन द, हमें उनको एप्रिशिएशन भी करना चाहिए। Social aim. Study of the science should also aim in the development of the social virtues among the students for leading a well-adjusted social life and the contributor significantly towards the welfare and the progress of the society. सेम ही बात है। अब इसमें हमें सोसाइटी डेवलपमेंट में जो साइंस के को क्या क्या करना चाहिए वो है, it should help a child to understand and apply all what is going on around him in the name of the development in the field of science and technology. It will not only help him to adjust socially, but also contribute towards the progress of the science, society, nation, and the humanity at large. So, जो बच्चे साइंस के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सी चीजें उनको नॉलेज मिलेगी। सो वो है, उनसे जो है उनकी सोसाइटी, उनके नेशन और उनके खुद की जो है पर्सनैलिटी में बहुत डेवलपमेंट होगा। He must also be made to understand that the welfare of himself is completely interlinked with the welfare of others living in the society. So अगर सोसाइटी की डेवलपमेंट करनी है तो सबसे पहले उसको खुद की डेवलपमेंट करनी होगी। The study of science thus should aim in helping the children to imbibe essential social qualities, जो साइंस है उनके अंदर जो है imbibe कर देती है, डाल देती है सोशल क्वालिटीज एंड द वर्च्यूज फॉर बिकमिंग, उनको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बना देती है। It should help him to use the knowledge and the skills of the science for the progress and the improvement of the society, and educate him properly with the evils of the misuse of the science and the technology for the destructive ends. और इसके जो है मिसयूज ऑफ साइंस से क्या होगा और इसके क्या जो है दुष्ट परिणाम होंगे। सो ये सब चीजें जो है वो एक स्टूडेंट को समझ में आती है जब वो साइंस पढ़ता है। Next is the vocational aim. On attaining maturity, one is supposed to earn his livelihood. Our science education should also strive for the achievement of this end. It becomes more essential by noting a significant development that today our day-to-day life activities and all what is manufactured, consumed, and applied is completely dominated by the knowledge of the science and the technology. So जितनी भी हमारी डे टू डे लाइफ, रोजाना की जो जिंदगी है उसमें जितनी भी हमारी एक्टिविटीज हैं, चाहे जैसे अभी आप इस फोन से पढ़ रहे हो, लैपटॉप से पढ़ रहे हो, ठीक है, या फिर आप बहुत से ऐसे फूड है जो बहुत सी मशीनरीज के द्वारा बनते हैं, या जो आप कपड़े हैं, ठीक है, वो बहुत सी मशीन से द्वारा बनाए जाती हैं। वो मशीन क्या है, ये सब चीजें क्या है, ये फोन, ये लैपटॉप, ये साइंस की ही देन है। सो ये सब चीजें साइंस ने ही बनाई है। सो ये सब चीजों के बारे में जो है एक स्टूडेंट को पता चलता है। Today, the key of almost all the professions and the vocations lies in the knowledge and proficiency achieved in the field of science. So, जितने भी professions हैं उनमें जो है knowledge और the proficiency achieved in the field of the science. So yes, उसमें जो एक knowledge वो science की ही है। The requirement of the latest technological advancement in all the fields vocations and made us to replan and set up a science education for achieving the vocational aim. To prepare our youngsters to earn their livelihood by learning essential facts and principles of the science, studying relevant courses of the study, preparing himself for choosing, entering, and becoming successful in the various occupations and vocations, not only for gaining economic independence but also contributing
towards the prosperity of the nation. सो साइंस में ना बहुत डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स हैं. सो ये साइंस के डिफरेंट डिफरेंट साइंस की एजुकेशन से 10th तक अगर बच्चों को पढ़ाई जाएगी, ठीक है, सो उनमें ये उनको पता चल जाएगा कि मुझे जो है अपनी लाइफ कैसे गुजारनी है ना, मुझे आगे चल के कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन से कोर्स की स्टडी करनी है, मुझे अपने आप को किस लिए प्रिपेयर करना है, कौन सा मुझे कैरियर चूज करना है, मुझे एमबीबीएस करनी है, मुझे इंजीनियरिंग करनी है, मुझे नर्सिंग करनी है, एनीथिंग, ठीक है, इन वेरियस ऑक्यूपेशंस. सो उससे उसको इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस तो मिलेगी ही, बट उससे क्या होगा, वो अपनी जो हमारा कंट्री है, उसका नेशन जो है, उसको भी डेवलपमेंट करने में उसको भी आगे कंट्रीब्यूट करेगा. ठीक है. सो साइंस जो है वो वोकेशनल एम भी है इसका, उससे उसको बच्चे को जो है बहुत से कैरियर ऑप्शंस मिल जाते हैं. और अचीविंग साइंस एजुकेशन इन आवर स्कूल मस्ट हैव अ प्रॉपर सिस्टमैटिक प्रोग्राम होना चाहिए. इससे बच्चों को प्रिपेयर करना चाहिए डिफरेंट ऑक्यूपेशन के लिए, वोकेशनल कोर्सेज के. Proper opportunities for the adoption of the scientific hobbies which can lead them to earning in their livelihood by engaging into the employment projects and the small scale industries. So उनको हर चीज़ें जो है वो प्रैक्टिकली वे में करवानी चाहिए, सो दैट कि आगे चलकर वो अपनी लाइफ में अच्छा जो है अर्न कर पाए. Utilization of the leisure time. So science जो है education must also aim in the helping the students to learn ways and means of utilizing the leisure hours fruitfully as possible. So हम हमारे जो फ्री टाइम है उसको अच्छे से यूज कर सकते हैं. इट मस्ट प्रोवाइड अस द वेज टू रिलैक्स एंड द सीक प्रॉप. इससे हम हमारे जो फ्री टाइम है उसको एंटरटेनमेंट कैसे कर सकती हैं, नेचर से कैसे कर सकती हैं, और टेक्नोलॉजी से कैसे कर सकती हैं. It aimed to cultivate useful scientific hobbies for the profitable utilization of one's leisure time. Photography, vegetable growing, gardening, manufacturing of the soap, face powder, cream, toothpaste, ink, varnishes, repairs of the electrical gadgets, radio, watch, stoves, gas burner, cycle, scooter. So ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी एक्टिविटीज जो हम कर सकते हैं to utilize our leisure hours, especially the students. Psychological aim. So science जो है वो satisfaction of the psychological needs of the youngsters. तो psychology जो है एक सब्जेक्ट भी हम उसमें भी पढ़ते हैं पूरा. और जो लाइफ साइंस पढ़ने से एक स्टूडेंट के अंदर जो उसकी मेंटेलिटी डेवलप होती है, चिल्ड्रन के अंदर जो है एक क्यूरियोसिटी बनी रहती है दिमाग में हमेशा से ही, कि उनको जानना होता है कि ये चीज़ क्यों हो रही है, नोइंग एंड इन्वेस्टिगेट करना थिंग्स को अराउंड हिम. सो छोटे बच्चे जो होते हैं ना वो बहुत क्वेश्चन करते रहते हैं आपसे जब देखो कि ये क्यों होता है, ये कैसे होता है. तो सो इनके जो बहुत सारे आंसर्स होते हैं ना, तो उसके आंसर्स उनको स्कूल में मिलेंगे जब वो पढ़ेंगे साइंस. जो इंटरेस्ट के जो एरियाज हैं वो बहुत वाइड है और डाइवर्सिफाइड है. They want to do things with their own hands and verify the truth by actual observations and experimentations. So उनको ये चीजें करने की, एक्सपेरिमेंट करने की, ये उनको स्कूल में एक सुविधा होनी चाहिए. Science education is capable of providing the proper opportunities for all the students in the satisfying their varying psychological needs को satisfy करने में, उनको ग्रो और उनके डेवलप करने में जो हेल्पफुल होगी. Science education in our school must provide for meeting all the psychological needs of the youngsters. Helpful in the study of other subjects, all the subjects taught in the school strive in their own ways to achieve the purpose and the aims of the education. तो सभी subjects के अपने अपने aims हैं, अपने अपने objectives हैं. They have many things in common with regard to the content nature. So सभी subject की एक common चीज है, वो है content, nature and the purpose. Study of the one subject is directly, हर subject जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है, by the study in the other subjects. Keeping this in mind, we must plan the study of science in such a way that
derive necessary help from the study of the other subjects. For studying science, may utilize the knowledge of the science in studying other subjects of the school curriculum. तो साइंस जो है और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, उनको पढ़ने में हेल्प करता है। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ एक, जैसे जैसे हम जो है यूपीएससी में वगैरह में जो हम जियोग्राफी पढ़ते हैं, नॉर्मली जो जियोग्राफी पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत से ना टॉपिक होते हैं, जैसे कि ये क्या लिख दिया, बट ठीक है। ज्योग्राफी हम पढ़ते हैं तो उसमें ना एक टॉपिक होता है ओरिजिन ऑफ द अर्थ, ठीक है, या ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स कैसे हुआ। तो वो सारे टॉपिक्स ना जो हम पढ़ते हैं वो हमने अपनी साइंस में पहले से ही पढ़ चुके होते हैं। ऐसे जो है वो हम एक दूसरे सब्जेक्ट को जो साइंस है वो हेल्प करती है स्टडी करने में। स्किल एम, study of science at all levels should essentially aim to develop the skills and the pertaining to scientific observations, experimentations, and practical use of the scientific facts and the principles. बस यही काम है इसका कि स्किल डेवलप करना। Although we cannot expect a very high degree of manual proficiency and technical skills from the children studying in school, हम जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनके मतलब कि बहुत ही प्रोफिशिएंसी, मतलब बहुत अच्छे से काम, मतलब और उनके अंदर बहुत अच्छी टेक्निकल स्किल्स हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि वो बहुत अच्छे सारे एक्सपेरिमेंट्स को कम करेंगे, बट फिर भी उनके अंदर जो है एक एम कल्टीवेट करना, एक हैबिट बनाना उनके अंदर, थिंग्स को अपने आप करना, कैसे थिंग्स को कैसे जो है कोई भी चीज़ हो चाहे उसको कैसे मैनिपुलेट करना, एक्सप्लोर करना, चीज़ों को ऑब्जर्व करना, एक्सपेरिमेंट करना, हैंडल करना बहुत से अप्लायंस को, इंस्ट्रूमेंट्स को, ठीक है, एक कंक्लूजन लेकर आना इन द फाइनल। ये जो है सब साइंटिफिक वे जो है एक स्किल डेवलप कर देती हैं स्टूडेंट के अंदर। तो ये हमने जो है मोटे मोटे से पढ़ी हैं एम्स of teaching life science in the schools. Knowledge of aim, प्रैक्टिकल एम होना चाहिए एक तो, ठीक है, और उनके साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप करना, बच्चों के उनके अंदर कल्चर डेवलपमेंट करना, सोशल एम एंड वोकेशनल एम and utilization of leisure time and psychological aim and the helpful in the study of other subjects and the skills develop करना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि एम्स ऑफ लाइफ साइंस टीचिंग एट डिफरेंट स्टेज ऑफ द स्कूल एजुकेशन। डिफरेंट जो स्टेज हैं, एट अ प्राइमरी स्टेज हो गया, एट अ मिडिल स्टेज हो गया, एट अ लोअर स्टेज, ये सब इसमें साइंस जो है इसके क्या क्या एम्स है।